guys, I welcome you all in this amazing series of bridge course. Right, I hope you guys have already gone through the videos that I have already covered in this series. Logarithms cover kiya humne, and also trigonometry. Right, the concepts that I have discussed here I'll be using in these videos, so I'll recommend you people to follow that series if you want to go through these topics. Right, so without wasting much time, I'll quickly get into the topic. Right, functions. What do we mean by functions? Functions, if we want to define in a most crudest way, we can say functions are nothing but expressions involving some variables. Right, so we can say functions will be having some variables. Right, variables, whatever variables, either x, alpha, or any. Right, so if I ask you this expression is a function, right? It is having some variable, x is the variable, right? That means this is also a function. If I say this is also a variable, this is x is also a variable here, right? So this is also a function. So all of these are functions, right? So we will be going through all of the functions. Is this a function? Is this a function or not? Right, this is also a function, this is a logarithmic functions, these two are polynomial functions, isn't it? So all these things we will be learning here, right? Once we know the graph of these particular functions, it will be very easy for us to solve problems in mathematics as well and physics as well, right? So these topics are very important, I would say. Now, if you want to get a feel of what functions are, we can imagine functions as a kind of a box, right? In which if we put something, we get something out of it, right? If you put something into a function, we get something out of it, right? Let's take yourself as a function. If you are a function, if I take yourself as a function, if you work hard, right? If you work hard, you'll succeed, you'll get success, right? So you can imagine your hard work as an input and your success as an output, right? So you yourself can imagine yourself as a function. So if I'm putting some value into it, I'll get something out of this expression, right? If I'm putting x equals to 1 here, I'll get some value out of it, right? That is 5, isn't it? So 1 is input and 5 is output. Same thing. Can correlate? Alright. Hello. Next thing. All these expressions are functions, है ना? अच्छा, अब functions बने हैं तो हम इनको in depth में अगर देखते हैं तो क्या बोल सकते हैं हम इनके बारे में? इनको मुझे बार बार जैसे 2x plus 3 आया, है ना? 2x plus 3 को अगर मैं बार बार 2x plus 3 बोलूंगा तो it is not good. तो मैंने क्या किया, इसको एक लिखने का तरीका डिनोट कर दिया. I have given it a notation that how to write such kind of expressions in a smaller way, right? I can call them f of x, right? That means it is an expression of this particular thing. That is, this is the variable, x is the variable, right? तो अगर मैंने कहा कि log of alpha minus 1, this is a, assuming that this alpha is not a constant, it is a variable, I can write this expression as what? Expression of alpha, that is f of alpha, isn't it? Isn't it? Fine. Alright. If I'm taking 2x plus 3 as a function and I'm putting some value into it, that is x equals to 1, what I'm getting? I'm getting f of 1, है ना? I'm getting f of 1. कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा. अगर मैंने इसके अंदर x equals to 2 input डाला, what I'll get? I'll get f of 2. कितना आ जाएगा? 2 into 2 plus 3 यानी 7, isn't it? And so on. So I'll get values according to this. Clear? Alright, let's move on to the next thing, right? If we consider these functions and if we want to draw graphs of these functions, right? So we were having two things, a function, input, some input and output. Let's say x is the input, what was the output? F of x, isn't it? Whenever we talk about functions, right? Whenever we talk about functions and their graphs, we call this f of x as y. Why I am saying this? Because आपने देखा होगा हम ग्राफ्स जब प्लॉट करते हैं तो x एक्सिस होती है और y एक्सिस होती है. हम ग्राफ को x एक्सिस, किसी भी ग्राफ को x एक्सिस और y एक्सिस पे प्लॉट करते थे. क्लास 10 के अंदर हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर, अगर हमने अच्छे से पढ़ा हो, राइट, क्या करते थे, x एक्सिस और y एक्सिस पे पॉइंट्स को प्लॉट करते थे, उनको ऐड करते थे और हमें ग्राफ मिल जाता था, राइट. तो मैंने अगर कहा कि लेट्स टेक 2x plus 3 एज अ फंक्शन, राइट, तो इसके अंदर मैंने अगर x equals to 1 डाला तो मुझे f of 1 आउटपुट मिला,
कितना मिला 5 मिला। अगर मैंने इसके अंदर x इक्वल्स टू 2 डाला तो मुझे आउटपुट f ऑफ 2 मिला, कितना मिला 7 मिला, राइट। अगर मैंने इसके अंदर x इक्वल्स टू 3 डाला तो मुझे आउटपुट कितना मिला f ऑफ 3 मिला, दैट इज 9 मिला, एंड सो है ना। सो आई एम गेटिंग दीज वैल्यूज एज y इफ आई वांट टू प्लॉट दिस फंक्शन, इफ आई वांट टू प्लॉट दिस फंक्शन ऑफ x ऑन अ ग्राफ, है ना। तो यही चीज तो मेरी y होती थी, isn't it? यही चीज तो मेरी y होती थी। Now I want to write this x and y in terms of coordinate। कैसे लिखूंगा 1 कॉमा, जब मैंने 1 डाला तो मुझे कितना मिला 5 मिला, तो y का वैल्यू 5 हो गया, दैट मीन्स 1,5 है ना। अच्छा, फिर मुझे जब मैंने 2 डाला, राइट, x का वैल्यू जब मैंने 2 डाला तो मुझे y का वैल्यू कितना मिला 7 मिला, दैट इज 2,7 इज माय कोऑर्डिनेट इन द xy प्लेन, राइट। अगर मैंने x का वैल्यू 3 डाला तो मुझे y का वैल्यू कितना मिला, y का वैल्यू 9 मिला, दैट इज 3,9 इज also one of my coordinate, right। Now I want to draw the graph of this particular expression। कैसे करता था मैं, ऐसे y एक्सिस बनाया, ऐसे x एक्सिस बनाया, है ना, x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस पे हमेशा क्या 0 होता है y, है ना, y का वैल्यू हमेशा x एक्सिस पर 0 होता है, isn't it? This is the origin, ऐसे होता था। अच्छा, ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एंड सो ऑन चलते हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या लिखता था x एक्सिस पे 1,0, क्योंकि y यहाँ पे 0 रहेगा, ऐसा नहीं। अगर ये -1 डिस्टेंस है, यहाँ से मैं 1 यूनिट चला तो इधर आ गया। अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूँ तो मैं कैसे लिखता हूँ -1,0, ऐसा नहीं। और y एक्सिस पे क्या 0 होता है गाइस, अज्यूमिंग दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, y एक्सिस पे हमेशा x का वैल्यू 0 होता है, ऐसा नहीं, x का वैल्यू 0 होता है ना। तो अगर ये वाला पॉइंट में लिखना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा 0,3। पहले हम हमेशा x को लिखते हैं, देन y को लिखते हैं, राइट। x is the abscissa and y is the ordinate, isn't it? All right. So I know you guys. So I'm assuming that you guys know how to plot up points in the Cartesian coordinate system, right? This xy plane is known as Cartesian coordinate system, right? So this Cartesian coordinate system divides the plane into 4 different quadrants. This is number 1 quadrant, this is number 2 quadrant, this is number 3 quadrant, and this is number 4 quadrant, right? In this first quadrant, if I want to write a point x comma y, right, x comma y, both of these x and y will be positive, isn't it? In the first quadrant, if I want to plot a point x comma y, both of these points will be positive. In the second point, in the second quadrant, if I see second quadrant is lying on the negative in the left hand side of the y axis के left hand side में lie कर रहा है ना, y axis के left hand side में x is always negative। तो यहाँ पे second quadrant के अंदर definitely I can say that x will be negative। And what about the y axis? x एक्सिस के ऊपर हमेशा y पॉजिटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट इज लाइंग अबव x axis, that means in this quadrant y will be positive, isn't it? Let's talk about third quadrant. Third quadrant is lying on the left hand side of the y axis, and if it is lying on the left hand side of the y axis, we can say x is negative, right? And it is lying below the x-axis, that means y is also negative, right? What can we say about the fourth quadrant? Fourth quadrant, it is lying on the right hand side of the y-axis, that means x is positive, and downwards of x-axis, that is y is negative, right? So these are the signs of the quadrants that we can allot to these quadrants, right? If I want to know in which quadrant 3, -2 will lie, 3, -2, then it will definitely lie into the fourth quadrant because x is positive and y is negative, right? I hope you guys know this much, right? So once we know how to plot the coordinates in xy plane, we can plot the thing which we have done here, right? The thing we have done here, right? How? Let's draw first x-axis and y-axis, right? X-axis and y-axis. This is y-axis. On y-axis, x will always be 0, and on this x-axis, on this y-axis, x will be always 0, and on this x-axis, y will always be 0, right? And this is 90-degree angle, right? If I want to plot 1, 5,
right? These were the coordinates 1,5, 2,7, 3,9 as per this function, right? Input क्या था? जब 1 input था, output was what? 5. जब 2 input था, what was the output? 7, है ना? जब 2 input था, what was the output? 7. जब 3 input था, what was the output? 9. So we made these kind of points, these 3 points, right? Let's plot these 3 points. यही करते थे हम, है ना? यही करते थे. तो 1,5. This is 1. This is 2. This is 3. This is 4. This is 5. है ना? This is 1. This is 2. This is 3. है ना? ऐसे ही बनाते थे ग्राफ. अच्छा 1,5 किधर हो गया? x एक्सिस पर मैं यहाँ से शुरू करूंगा. x एक्सिस पर मुझे 1 डिस्टेंस चलना है. I'll reach here and then towards positive direction of y axis 5 units. That means I'll reach here, isn't it? That means I'll reach here, है ना? अच्छा फिर आगे देखें और पॉइंट्स. इसके अंदर x का वैल्यू अगर मैंने -1 डाला तो what I'll get as an output मुझे कितना मिल जाएगा? -2 + 3 that is कितना? 1, है ना? अगर मैंने इसके अंदर x का वैल्यू 0 डाला, आउटपुट मुझे कितना मिल जाएगा? f(0) 3 मिल जाएगा, है ना? अच्छा तो ये दोनों कोऑर्डिनेट भी आ गए मेरे पास. क्या आ गए? -1, 1 एंड जब 0 डाला तो कितना मिला? 3 मिला. तो 0,3, राइट, है ना? चलो तो इन पॉइंट्स को और प्लॉट कर देते हैं. तो -1 विल लाई समवेयर हियर. -1 जब डाला x तो भाई कितना मिला? ये मिला 1, है ना? इसको मैं रेड मार्क से डिनोट कर देता हूँ. ये वाला पॉइंट वाज 1,5. दिस पॉइंट वाज कितना? -1,1, है ना? Assume this at -1,1, right? थोड़ा मैसी हो गया. All right. तो फिर क्या करें? 0,3. 0 जब डाला तो 3 मिला. That means this, है ना? 0,3. इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ, तो I get a graph. Isn't it? ऐसे ही मिलता है ग्राफ, है ना? ऐसे ही मिलता है ग्राफ. तो what can I say about this particular line? I can say that this is the graph of y is equals to 2x plus 3, right? ग्राफ की जब मैं बात करता हूँ तो f of x की जगह मैं सिर्फ y लिख देता हूँ. क्यों? क्योंकि मैं ग्राफ किसके बीच में बनाता हूँ? x एक्सिस के और y एक्सिस के बीच में, राइट? क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं. ठीक है. तो अब तक तो हम ग्राफ ऐसे निकाला करते थे कि एक वैल्यू डाला करते थे और हमको इजीली मिल जाता था. नाउ वी विल क्रिएट सम ट्रेंड्स. हम ये देखेंगे कि किन कंडीशंस में क्या क्या होता है, राइट? सो वी कैन मेमोराइज द ग्राफ्स इजीली, राइट? एज ऑफ नाउ यू विल हैव टू ईदर पुट पॉइंट्स टू ड्रॉ अ ग्राफ और मेमोराइज द ट्रेंड्स, राइट? once we get command over calculus we'll get to know कि ग्राफ ऐसे ही क्यों बनते हैं, right? There is a logic behind that as well, right? But जब तक we are unable to have the idea of calculus like limits, differentiation and all, जब आप differentiation पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत और आइडिया लग जाएगा कि ये ग्राफ ऐसे क्यों बनते हैं, राइट? लेकिन एज ऑफ नाउ हम दो तरीके से इन चीजों को सीख सकते हैं. एक तो कैसे कि हम डिफरेंट वैल्यूज डालते जाएं, हमारे पास जो पॉइंट्स आते जाएंगे उनको जोड़ते जाएंगे और हमारे पास ग्राफ बन जाएगा, राइट? और दूसरी चीज वी विल मेमोराइज द ट्रेंड्स दैट आर गोइंग देयर, राइट? तो सबसे सिंपल सा फंक्शन लेते हैं, सबसे सिंपल सा एक्सप्रेशन लेते हैं. अगर कोई मुझे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कोई कांस्टेंट नंबर, लेट्स से 2, है ना? इस 2 के अंदर x तो है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं. दैट मींस x का पावर कितना है? 0, है ना? जो भी वैल्यू मैंने अगर इसके अंदर x का डाला, लेट्स से मैंने 1 डाला, तो व्हाट आई विल गेट एज एन आउटपुट? 2, है ना? अगर मैंने इसके अंदर x का वैल्यू -1 डाला, मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? 2. यानी मैं इस कांस्टेंट नंबर के अंदर अगर इनपुट कोई भी डालूंगा, यानी कांस्टेंट फंक्शन के अंदर अगर इनपुट कोई भी डालूंगा तो माय आउटपुट वोंट चेंज, है ना? तो यही चीज हम करने वाले हैं, राइट? कैसे करें? तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं अगेन, राइट? तो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया. दिस इज ओरिजिन, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, राइट? सो व्हेन आई एम पुटिंग x is equals to 0, मुझे
y का वैल्यू कितना मिल रहा है 2 है ना, y का वैल्यू इज व्हाट, y का वैल्यू इज f ऑफ 0 ओनली है ना। ये x मैंने इनपुट डाला और ये f ऑफ x मुझे आउटपुट मिला, तो जब मैंने x इनपुट डाला तो मुझे आउटपुट कितना मिला, f ऑफ 0 मिला, और जो आउटपुट मिला दैट इज इन टर्म्स ऑफ ग्राफ्स वी आर कंसीडरिंग एज y ओनली, राइट। तो x कॉमा y विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट है ना, फिर से बता दिया मैंने। तो 0,2 इज द पॉइंट जिससे ये लाइन मेरी पास होगी है ना, जो भी चीज मेरा ग्राफ आने वाला है वो उससे पास होगा, राइट। जब मैंने 1 डाला, लेट्स से दिस इज 1 है ना, जब मैंने x1 डाला तो मुझे y का वैल्यू कितना मिला, मुझे y का वैल्यू अगेन 2 ही मिला। जब मैंने x का वैल्यू 2 डाला तब भी मुझे y का वैल्यू कितना मिला, y का वैल्यू कितना मिला, 2 ही मिला, राइट। सो दिस इज 2,2। इफ आई जॉइन ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, तो जो भी मेरे पास कर्व आएगा that will be the graph of the function, यानी ये ग्राफ किसका हो गया, this is the graph of y is equals to 2, right। तो क्या समझ में आया, क्या समझ में, जो भी कांस्टेंट वैल्यू है मेरा, कोई कांस्टेंट फंक्शन अगर मैंने लिया, राइट, k, लेट्स से k कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो कांस्टेंट फंक्शन क्यों बोल रहा हूं मैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है, राइट। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर डाल दो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में, राइट। नंबर लाइन जानते हैं सभी, तो नंबर लाइन पे सारे रियल नंबर्स प्लॉट किए जा सकते हैं, उनमें से कोई भी वैल्यू आप उसके अंदर डालोगे उसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, दैट मींस दैट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, राइट। सो वी हैव सीन ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 2 है ना, या f ऑफ x इक्वल्स टू 2 बोलते हैं, क्योंकि y ही तो मेरा f ऑफ x है, राइट। इसका ग्राफ समझ में आ गया है ना। अच्छा, एग्जांपल दिया हुआ है आपको f ऑफ x इक्वल्स टू 3, इसके अंदर आप कोई भी इनपुट डालोगे यू विल गेट आउटपुट एज 3 ओनली, राइट। यानी कि आपका आउटपुट दैट इज y कभी भी चेंज नहीं होगा, और y कभी भी चेंज कब नहीं होगा, व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, इजंट इट, व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस है ना। अच्छा, जब भी आपका x चेंज नहीं हो रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं x कहाँ चेंज नहीं होगा, कोई भी लाइन अगर मैं y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दूंगा तो मेरा x कभी भी चेंज नहीं होगा, इजंट इट। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम ग्राफ्स के अंदर पढ़ते हैं वो है डोमेन और रेंज। डोमेन का मतलब क्या है, हम इनपुट क्या क्या उसके अंदर डाल सकते हैं, इनपुट क्या क्या हम उसके अंदर डाल सकते हैं, रेंज मेरा आउटपुट, ठीक है। तो डोमेन में कौन से एक्सिस पर देखूंगा, डोमेन में एक्स एक्सिस पर देखूंगा क्योंकि एक्स इज द इनपुट, राइट। और रेंज में कहां देखूंगा, रेंज आई लुक ऑन वाई एक्सिस बिकॉज वाई इज द आउटपुट, right। So if I see domain in this example, I can put any real number into it, right। So my domain will be all real numbers for this expression, isn't it। And what will be the range, y का वैल्यू हमेशा मुझे 3 ही मिल रहा है, तो this is my range, right। क्लियर है, सिंपल है। कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, राइट। कभी भी कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होएगा तो दैट विल बी a line parallel to x axis only, clear। Let's move on to the next thing. If I'm having an identity function is what, f of x equals to x, यानी कि एक फंक्शन है x, ठीक है। उसके अंदर मैंने अगर x इक्वल्स टू 1 डाला लेट्स से, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 1, isn't it। अगर मैंने उसके अंदर x इक्वल्स टू 2 डाला तो मुझे आउटपुट कितना मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 2, सेम आउटपुट मिलेगा, राइट। सो आई एम हैविंग पॉइंट्स लाइक 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 and so on. If I mark these points in a graph like this, that this is 1,1, this is 2,2, here will somewhere will be 3,3, and here पीछे भी जा सकते हैं -1, -1 and so on, -2, -2 and so on, and I join all of these points, I'll get the graph of y is equals to x, isn't it। I'll get the graph of y is equals to x, क्लियर है ना। इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो अगेन 2 टर्म्स, डोमेन यानी x का वैल्यूज, सारा वैल्यूज कहां दिखेंगे, x एक्सिस पे, राइट। अगर ये वाला x का वैल्यू इसके अंदर डाला होगा तभी तो ये वाला इसको y का वैल्यू मिला होगा,
राइट। सो डोमेन हम देखेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। हाउ डू वी सी डोमेन इन अ ग्राफ? अगर आप इस पूरे ग्राफ को एक्स एक्सिस पर दबा दो, राइट, सो इट विल बी कवरिंग द एक्स एक्सिस एंटायरली, that is your domain, right? If you want to look for range, how will you do? ग्राफ को आप y एक्सिस पे कंप्रेस कर दो तो सारे का सारा ग्राफ जो है आपका y एक्सिस पर आ जाएगा. That means it will take all real values, right? So here domain will be R and range will be also equal to real numbers, right? If you look at the earlier example, right, इसको हम अगर x axis पे कंप्रेस कर देंगे तो we will get the domain. तो अगर हमने इस ग्राफ को x एक्सिस पर कंप्रेस कर दिया तो we will get domain what? Every real number, right? And if we compress it on the y axis तो हमको 3 के अलावा कोई भी वैल्यू मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. That means ranges are equal to 3. Range for this function is equals to 3. Isn't it easy? है ना? आगे बढ़ते हैं. ठीक है. लीनियर फंक्शन आपको पॉलिनोमियल्स के अंदर पढ़ा होगा कि जब पॉलिनोमियल्स का डिग्री 1 हो जाता है तो हम कहते हैं वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, राइट? तो एक लीनियर एक्सप्रेशन को ही मैं लीनियर फंक्शन बोलता हूं, राइट? इट इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल वैल्यू. व्हाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि इसके अंदर आप कोई भी रियल नंबर डालोगे, जैसे हमने देखा 2x + 3 है ना, तो कोई भी रियल नंबर डालेंगे तो इट विल गिव मी एन आउटपुट जहां पे a and b आर व्हाट? a and b आर सम कांस्टेंट एंड a इज नॉट इक्वल टू 0. अगर a ही 0 हो गया गाइस, अगर a ही 0 हो गया तो दिस विल बी अ कांस्टेंट फंक्शन, राइट? दिस विल बी अ कांस्टेंट फंक्शन, है ना? इसीलिए a को नॉन जीरो होना पड़ेगा, राइट? क्लियर है? अच्छा, इसका ग्राफ मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. व्हाई आई एम सेइंग दिस? इफ यू गाइस हैव स्टडीड in class 10th there is a chapter that linear equation in two variables, है ना? पढ़ा है ग्राफ. उसके अंदर आपने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ा होगा ax plus by plus c is equal to 0, isn't it? जहां पे x and y are variables and a b c belongs to some constants, right? Some constants, right? So there are two variables x and y, right? So if I take this by towards right hand side, what I'll get ax plus c is equals to minus by, right? If I divide both of these expressions LHS and RHS by minus b, what I'll get? This, isn't it? This I'll get, isn't it? I can rewrite this expression as y equal to minus a by b times x plus minus c by b times this, right? I can rewrite this expression as this. अच्छा, since मेरे a, b और c कांस्टेंट है, a, b और c खुद ही कांस्टेंट है, तो this will again be some constant. उनको डिवाइड भी कर दूंगा तो this will be a constant और this will again be a constant, isn't it? So both of these will again be constants, isn't it? Constants, है ना? तो इनको constants को अगर मैंने let's say इस वाले को m दे दिया नाम टाइम्स x प्लस इस वाले को मैंने p दे दिया नाम, ये तो नाम देने की बात है. कांस्टेंट कैन बी एनीथिंग, राइट? सो दिस इज आल्सो द सेम थिंग, राइट? और हमको पता है कि स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ, इस एक्सप्रेशन का ग्राफ क्या पता है? स्ट्रेट लाइन. तो ये और ये तो सेम चीज ही लिखी हुई है. दैट मींस इस लीनियर फंक्शन का ग्राफ भी हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, राइट? क्लियर? डोमेन और रेंज. कैन यू गाइस कोरिलेट विद दीस टू टर्म्स हियर? है ना? आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस थिंग, राइट? लेकिन ये तो हमने देखा कि लीनियर फंक्शन होते क्या हैं, राइट? हम इनका ग्राफ कैसे बनाएंगे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई विल बी डीलिंग, राइट? स्ट्रेट लाइन कोई भी होगी, राइट? किसी भी प्लेन के अंदर स्ट्रेट लाइन होगी, उसके लिए दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 इज स्लोप and number 2 is intercept. Slope and intercept. What are these two things? Abhi we have convert this equation ax plus by plus c into this equation, right? Once we have made it y is equal to something of some expression of x, once we have made
this equation of straight line into some y is equal to some expression of x, right? जैसे ही हमने बना दिया let's say, है ना, तो जैसे ये बन गया y is equal to some expression involving x, right? तो जो x के आगे लिखा हुआ है that is equal to slope number 1, राइट? और जो कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है दैट इज y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि जब मैंने इस फंक्शन के अंदर x 0 डाला तो जो मुझे y का वैल्यू मिला दैट इज y इंटरसेप्ट, राइट? क्लियर है? y इंटरसेप्ट क्लियर है? जब मैंने x का वैल्यू 0 डाला, इसके अंदर आप x का वैल्यू 0 डालो, दिस विल बी 0, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा c क्या हो गया y इंटरसेप्ट, है ना? तो 0, c कहाँ लाई करेगा? यहाँ पे लाई करेगा y एक्सिस पर, तो दिस डिस्टेंस इज नोन एज c, दिस डिस्टेंस इज c, है ना? जहां पे भी काटा इसने वहां तक का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, है ना? दिस इज 0, c। अच्छा, अब बात कर लेते हैं स्लोप की। स्लोप क्या है? जो भी आपकी लाइन बनी, राइट, वो लाइन XY प्लेन के अंदर कैसे भी बन सकती है, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट, कैसे भी बन सकती है। वो स्लोप क्या है? सबसे पहले तो आप बोल दो उसको tan थीटा। थीटा क्या है देखेंगे, लेकिन स्लोप क्या होता है? स्लोप पहली चीज तो x के जो आगे लिखा हुआ है, राइट, और उसको अगर मैं इन टर्म्स ऑफ एंगल लिखना चाहता हूं तो tan थीटा। ये थीटा क्या है? दिस थीटा इज द एंगल मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कहां से मेजर कर रहा हूं इस एंगल को? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, राइट, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। हमारे पास ग्राफ को प्लॉट करने के बहुत सारे तरीके हैं, राइट? सबसे सिंपल जो आप क्लास 10th के अंदर करके आए हो कि पॉइंट बाय पॉइंट आप उनको प्लॉट करो और फिर ऐड कर दो, राइट? एक स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करते हुए बना दो, है ना? बट दिस थिंग विल हेल्प यू in finding out the graphs very easily, right? So this thing is very important, right? दो चीजें क्या क्या है? एक तो स्लोप है और दूसरा क्या है? y इंटरसेप्ट। स्लोप क्या होता है? जो भी आपका एंगल, जो भी आपकी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है ना, उसका tan थीटा, है ना, उसका tan थीटा। अच्छा, किसी लाइन को अगर मैंने 180 डिग्री रोटेट कर दिया, 180 डिग्री कंप्लीटली रिकॉर्ड, तो अगेन वो सेम लाइन आ जाएगी, ऐसा नहीं आएगी कि नहीं आएगी? लाइन इज नेवर एंडिंग गाइस। अगर एक ये लाइन है, लेट्स से इसको मैंने, ये लाइन है, अगर इसको मैंने 180 डिग्री घुमा दिया तो ये सेम लाइन ही तो हो गई, क्योंकि लाइन तो हमेशा नेवर एंडिंग होती है, राइट? तो अगर मैं अज्यूमिंग कि दिस इज एक्स एक्सिस, राइट, मेरे एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, अगर मैंने इसको 180 डिग्री घुमा दिया तो दैट लाइन विल बी सेम, दैट लाइन विल बी सेम, राइट? तो ये एंगल मेरा कहां से कहां तक जा रहा है? स्ट्रेट लाइन के लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए एंगल ऑफ रोटेशन मेरा कहां से कहां तक जा रहा है, ताकि वो लाइन सेम ही बनी रहे, 180 डिग्री, है ना? जैसे अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर मैंने इसको 180 डिग्री घुमाया तब तक इसका एंगल चेंज होता जा रहा है, राइट? जैसे ही ये पूरा घूम गई 180 डिग्री, इट हैज रीच्ड टू इट्स सेम पोजीशन। अब अगेन एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कितना हो गया? 0 हो गया, राइट? सो हम हमेशा एंगल मेजर किसके साथ करते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, राइट? क्लियर है? हमेशा ये जो एंगल मेंशन्ड इन द स्लाइड्स, इट इज ऑलवेज measured in the from the positive direction of x axis, and that too counterclockwise or we can say anti-clockwise ऐसे मेजर करेंगे हमेशा, राइट, है ना? अच्छा, अगर मैं x एक्सिस का और y एक्सिस के बीच में एंगल देखूं तो वो 90 डिग्री है, वो 90 डिग्री है। अगर इस लाइन के L के बारे में मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँ, राइट, इस लाइन L के बारे में मैं पूछना चाहूँ कि ये एंगल कितना है, तो यू गाइस कैन डेफिनेटली से दैट इट इज लेस देन 90 डिग्री, it is less than 90 degree, and for angles less than 90 degree our tan theta क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, है ना, पॉजिटिव। तो जो भी m का वैल्यू आएगा that will be positive, राइट? क्लियर है? m का वैल्यू इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर एंगल लाई कर रहा है, दैट मींस अगर एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो m का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में दैट मींस एंगल जब 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है, लेट्स से दिस इज द केस, राइट, दिस इज द केस,
हमेशा एंगल कहां से मेजर करूंगा किसी भी लाइन का? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ऐसे मेजर करूंगा, है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा गाइस? ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, उसमें से 45 माइनस कर देंगे तो आई विल गेट दी एंगल जो कि लाइन मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। कितना हो जाएगा? 135 डिग्री, है ना। ये क्या हो गया हमारा? थीटा। यही हमारा ये थीटा हो गया विच इज मेंशन्ड इन द स्लाइड्स गाइस। हमेशा एंगल लाइन का कहां से मेजर करेंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, एंड दैट टू इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, राइट। तो tan ऑफ 130 डिग्री, अगर आपने मेरा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर क्लियरली फॉलो किया हो तो आपको पता है कि इसका वैल्यू -1 हो जाएगा, क्योंकि tan 135 डिग्री को आई कैन राइट एज 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। और सिंस यहाँ पे कौन सा मल्टीपल? इवन मल्टीपल या मल्टीपल ऑफ पाई लिखा हुआ है, तो tan में ही रहेगा। और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज रूल से this will be negative, and negative of tan 45 degree that is equals to -1, isn't it? तो m का वैल्यू मेरे पास tan थीटा होता है, और tan थीटा यहाँ पे कितना दिया हुआ है मुझे? थीटा कितना दिया हुआ है? 135 डिग्री, क्योंकि मैं एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से मेजर करता हूँ, राइट। तो m का वैल्यू मेरा कितना आ गया? -1, isn't it? -1 आ गया। तो इस लाइन की अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहता हूं तो एक तो मुझे पता है कि स्ट्रेट लाइन है तो फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस सी समथिंग होगी, उसमें भी m का वैल्यू मुझे क्लियरली पता चल गया -1, राइट। क्लियर? ऑलराइट, लेट्स टेक more example, right? If I want to draw this line, दिस लाइन, तो जो भी मेरा x के आगे लिखा हुआ है वो क्या होगा? m को मैंने अभी अभी किससे बताया? इन टर्म्स ऑफ एंगल, वो एंगल tan थीटा, राइट। और ये जो एंगल है थीटा, ये कहां से मेजर किया जाएगा? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, राइट। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। सिंस दिस इज पॉजिटिव, तो ये एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में रहा होगा, है ना। थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में रहा होगा। क्यों? क्योंकि m इज इक्वल टू √3 एंड √3 इज पॉजिटिव, isn't it? है ना। तो ये tan थीटा √3 कब होता है? जब थीटा कितना हो? tan थीटा √3 कब होता है? जब थीटा 60 डिग्री हो, राइट। तो दैट मीन्स कि दिस लाइन इज समथिंग which is making an angle 60 degree with the positive direction of x axis, and that too in the कौन सी डायरेक्शन के अंदर? काउंटर क्लॉकवाइज, राइट, एंटी क्लॉकवाइज। इज इट क्लियर? ऑल राइट। अच्छा, नेक्स्ट थिंग बात करते हैं कि C का क्या इंपॉर्टेंस था। C वॉज दी वाई इंटरसेप्ट, है ना। वाई इंटरसेप्ट बोला था, क्यों बोला था? जब हमने इसमें x का वैल्यू 0 डाला, x का वैल्यू अगर 0 डाला तो दिस एंटायर एक्सप्रेशन विल बी 0, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? C। तो दिस इज 0, C। अच्छा, दिस C कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि वेरिएबल, अगर मैं वेरिएबल की बात करूं, अगर मैं आपको बोलूं x पॉजिटिव है या नेगेटिव, x तो वेरिएबल है, वो हो सकता है +3 हो सकता है -3 हो, राइट। मैं x को लेके डायरेक्टली कभी भी नहीं बोल सकता कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। सिमिलरली C इज अ वेरिएबल हियर, राइट, इट इज नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू। तो C कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन कि इसके वैल्यू क्या है, राइट। अच्छा, अब जब C ही पॉजिटिव नहीं है, दैट मींस कि लाइंस तो बहुत सारी हो सकती हैं जो कि एंगल 60 डिग्री बना रही हो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, ये भी, है ना। ये सारी लाइंस वही लाइंस होंगी जो कि 60 डिग्री एंगल बना रही होगी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, isn't it? So there can be infinite lines with a same angle, right? Infinite lines with a same angle. But line fix कब होगी? जब ये वाला C भी फिक्स हो जाए, क्योंकि once this C gets fixed, जो भी y axis पे पॉइंट आने वाला है that will also be fixed, isn't it? और once मेरा ये पॉइंट फिक्स हो जाता है, let's say अगर मेरा ये पॉइंट फिक्स हो गया, that means ये वाली लाइन फिक्स होगी, isn't it right? So to fix a line you need two things, what? M and C. By M we mean theta, and by C we mean y intercept, isn't it right? So let's take a quick example, right? If I want to draw a graph of y is equals to 2x plus 3, m के जगह पे क्या लिखा हुआ है? 2, और m क्या होता है?
tan थीटा, जिसमें थीटा क्या होता है, एंगल मेड फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड एंटी क्लॉकवाइज उस एंगल को मेजर करेंगे, राइट। अच्छा, tan थीटा का वैल्यू 2 कब होता है हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन हम ये बोल सकते हैं दैट दिस थीटा विल बी डेफिनेटली लेस देन 90 डिग्री, राइट। क्योंकि लाइन को अगर मैं 180 डिग्री ही पूरा रोटेट कर दूं तो वो लाइन तो हमेशा वही आ जाती है। अगर मैंने किसी लाइन को 180 डिग्री रोटेट कर दिया, राइट, किसी लाइन को 180 डिग्री रोटेट कर दिया, दैट विल बी द सेम, है ना। तो हमको ये समझ में आ गया कि दिस थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री, है ना। अच्छा, दूसरी चीज, लेट्स से ये वो एंगल हो गया, राइट, क्योंकि 90 डिग्री से कम ही होगा, ये पूरा 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री से तो कम ही होगा, राइट, है ना। तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और जहां पे उसने वाई एक्सिस को काटा है, वाई एक्सिस को कहां काटेगा, जब एक्स 0 होगा तो वो वैल्यू मेरा कितना आना चाहिए, वो वैल्यू मेरा 3 आना चाहिए। दिस इज 0,3, तो लाइन दिस वोंट बी द लाइन, आवर लाइन विल बी दिस, राइट। इज इट क्लियर? All right, so we can plot rough lines like this, right? Roughly we can plot lines like this, right? Is it fine? Clear? Thank you so much.